پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو صادق اور آمین ہے اور بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے، میری اور آپ کی نجات کی کامل امید خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں اور فیس بک کے ان متعدد پیجز پر موجود آپ تمام ناظرین کی خدمت میں خداوند کا میں خاکسار خادم آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ شکر گزار ہوں اس خوبصورت ترین موقع کے لیے جو آج پھر خداوند نے میرے جیون میں بخشا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر کی جانے والی دعاؤں اور پرستش کے وسیلہ سے اور اب خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہو سکوں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جیسے ماضی میں خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم بہت کچھ سیکھتے، برکت پاتے اور ایمان کی مضبوطی کا سبب رہے، ویسے ہی آج بھی خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں سیر اور آسودہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتاب مقدس سے ہم آج کے دن اسپیشلی یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ پر بات کرتے ہیں۔ برس گزر گئے اور ہم آج اس آخری زمانے میں کتاب مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کے آخری باب کا آغاز کریں گے، آخری باب کا۔ اور میرے عزیزوں، کون جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں اگلا باب کھلے گا بھی کہ نہیں؟ فزیکلی بات کرتا ہوں، کوئی شورٹی، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے کیا ہی خوب ہوگا کہ اس آخری باب کے مکمل کرنے سے پیشتر ہم اپنے آپ کو اس انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوست کر دیں، نئی پیدائش کے ذریعہ سے اور مسیح خداوند کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے ذریعہ سے۔ تاہم اس 22 باب کا آغاز کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ 21 اور 22 دونوں ابواب اس نئے یروشلیم سے متعلق ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ 21 باب میں ہم نے اس نئے یروشلیم کی بنیادوں، دیواروں، دروازوں اور بیرونی منظر سے متعلق جو کچھ بھی بتایا گیا ہے، ہم نے انسانی سوچ کے تحت اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے متعدد بار یہ کہا کہ ہماری سوچ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ محدود سوچ، محدود علم اور محدود تحقیق کے ساتھ ہم اس نئے یروشلیم کی شان و شوکت اور رونق کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہم خود اس نئے یروشلیم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے
खुदा के कलाम से जो हमें समझ दी गई है उसके मुताबिक हम समझने के लिए कोशां हैं, लेकिन पूरे तौर पर उसी वक्त समझेंगे जब खुदा के लोग उस मुकद्दस शहर नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। तो इस 22 बाब की पहली आयत में यूं लगता है, बल्कि इस बाब में ही, कि अब उस शहर नए यरूशलेम के अंदरूनी मंजर को बताया जाता है कि वो कैसा है। इस पहली आयत में लिखा है, यानी 22 बाब की पहली आयत, फिर उसने मुझे बल्लौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। मुकद्दस यूहन्ना को हमने पहले भी देखा कि कई आवाजें भी सुनाई दी गई, फरिश्तों ने कलाम किया और बहुत से मनाजर इस मोहब्बत के रसूल को रूह में जजीराए पतमस में दिखाए गए हैं। और अब एक और मंजर दिखाया जा रहा है और यूहन्ना उसका जिक्र करते हैं, और ये आखिरी मनाजर है उस शहर यरूशलेम के, जिनकी बाबत मुझे और आपको किसी हद तक केवल इस वक्त इंफॉर्मेशन का होना जरूरी था और टेस्ट करना जरूरी था, इसलिए ये बातें हमसे की गई है। और वो फरमाते हैं, फिर उसने मुझे कुछ दिखाया। एक बार फिर यूहन्ना एक मंजर को देखते हैं, और जो उनको दिखाया गया, मैंने पहले कहा, यह एक अंदरूनी मंजर है, लेकिन वो कहते हैं आबे हयात का एक दरिया दिखाया गया। और इस दरिया से मुतालिक वो बयान करते हुए कहते हैं कि वो बलौर की तरह चमकता था, और दूसरी बात, वो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। 2 बार मैंने इस आयत को आपकी खिदमत में लफ्ज ब लफ्ज भी और फिर अपने अल्फाज में भी पेश करने की कोशिश की, ताकि हम इसको बेहतर तरीका से समझ सकें। जब हम शहर नए यरूशलेम की बात करते हैं, और यहां हमने देखा कि उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, तो याद है आपको, मैंने कहा था कि शहर नए यरूशलेम में सड़कें और गलियां यानी रोड्स नहीं है। यहां पर एक ही बात लिखी है, वहां एक सड़क है। नंबर 2, दरिया के बहने की बात हो रही है, लेकिन इस दरिया से मुताल्लिक मैं कहता चलूं कि अहद अतीक में जहां कहीं दरिया या नदी से मुताल्लिक बात हुई है, हर जगह तो नहीं लेकिन अक्सर मकामात पर, वहां यह दरिया ताकत को पेश करता है, दौलत की रेल पेल को पेश करता है, अमीरी को पेश करता है, बरकत को पेश करता है, जिंदगी को पेश करता है, अमन और सलामती को पेश करता है, सुलह को पेश करता है, और बेशुमार और
तशबीहात हैं जो दरिया से की जाती हैं। मुनज्जी आलमीन ने यह कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है गोया उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां बहना शुरू हो जाती है। जब मैं ज़बूर की किताब की तलावत करता हूं तो ज़बूर 46 और उसकी 4 और 5 यहां पर लिखा है, एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश न होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। एक नदी है दारा जदियां शहर नू खुश कर दिया। और यकीनन हम इस हकीकत को और इस सच्चाई को जाने कि ये उसी नए यह शहर यरूशलेम की केवल इस वक्त एक पिक्चर, एक बिल्ड पेश की जा रही है ताकि हम किसी हद तक उसको समझने की कोशिश करें। हम बार बार जिक्र करते चले आए कि ओवर 5 साल तकरीबन हो गए, इससे ज्यादा, कि हम इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं। महीने 2 महीने में खुदावन ने चाहा तो हम इस किताब को खत्म नहीं करेंगे। इंसानी इल्म के मुताबिक हम इसके मुताले को मुकम्मल करेंगे, महदूद सोच और महदूद इल्म के मुताबिक। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि 12 बार इस बात का हम जिक्र करते रहे कि हम इंतहाई लिमिटेड और महदूद वक्त में इन खूबसूरत बातों को सीखते चले आए हैं। बहुत ज्यादा टाइम दरकार था जो हम नहीं दे पाए। और फिर अगर चाहें, अगर आपके पास पेन, पेंसिल, नोटबुक हो तो 3 और हवाले भी आप नोट कर सकते हैं, जिनमें से एक यसाया नबी का सहीफा जो अंबियाए अकबर में से है, उसका 48 बाब और उसकी 18 आयत। और फिर हिजकियल 47 बाब और उसकी पहली 9 आयत। अगरचे ये मिलेनियम यानी वो जो 1000 साला बादशाही से मुताल्लिक बात हो रही है, लेकिन उस दरिया से मुताल्लिक केवल इस वक्त हमें बात बताई जा रही है। और फिर अंबियाए असगर में से जकरिया नबी का सहीफा, उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत का भी आप बाद में मुतालिया कर सकते हैं। ये तमाम बातें उसी दरिया से मुताल्लिक ही बयान करती है। और याद कीजिए कि जमीन पर जितनी भी नेमतें कादर मुतलक खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है, उनमें से कोई भी नेमत गैर मामूली नहीं है, या ऐसी नेमत जिसकी दूसरे के मुकाबले में कदर ना हो। नो, हर एक नेमत और हर एक बरकत का एक खास मुकाम है। और जब मैं इस दरिया से मुताल्लिक बात करता था, दौरान स्टडी में सोचता था, और वो ये कि जमीन पर पानी जैसी कीमती तरीन और खुशकुन चीज शायद ही कहीं और हमें मिले।
मैं पहले कह चुका हूं, हर एक चीज, हर एक नेमत का अपना मुकाम है, लेकिन पानी, और वो भी ऐसा पानी जिसका यहां पर जिक्र है और हम करेंगे भी, बहुत बड़ी नेमत है इस दुनिया में। क्योंकि इस पानी को देखकर हमारी नेचर में कुछ चेंज और तब्दीली आती है और हम खुदा की अजमत और बुजुर्गी के गुण गाते हैं। झीलों, दरियाओं और समुद्रों की बात करता हूं, और पानी पीने से रोटी मिले या ना मिले, काफी दिन तक हम जी सकते हैं, लेकिन पानी ना मिले तो महाल है, क्योंकि इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। एक आलम जिसका नाम पोले है, वो लिखता है कि आसमान पर मुकद्दसों की खुशी के लिए हर एक चीज होगी। सुन रहे हैं? गलत फहमी के शिकार न होइएगा। आसमान पर मुकद्दसों के लिए हर खुशी की चीज मौजूद होगी, और जो मुकद्दस होते हैं, और वो भी आसमान पर, उनको किन चीजों की तमन्ना होगी आप सोच सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जैसे गैर कौमें सोचती है, वहां पर ये होगा, वहां पर ये होगा, वहां पर ये होगा। मैं नहीं समझता कि वहां पर ये सब कुछ होगा, क्योंकि वहां कुद्दूस खुदा की हजूरी में मुकद्दस लोग होंगे, और उसकी हजूरी भी सरापा पाकीज़गी पर मबनी होगी। करोबीम और सराफीम, मलाइके समावी, अहदे अतीक के मुकद्दसीन, अहदे जदीद के मुकद्दसीन, जिनके जामे मसीहा के लहू से धुले हैं और इस दुनिया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, उसकी फर्माबरदारी में अपना जीवन गुजारते चले जा रहे हैं, दो नंबर नहीं है। उनसे मुताल्लिक हम देखते हैं कि वो जब खुदा की हुजूरी में होंगे तो उनकी तो ऐसी ना तो कोई तमन्ना होगी जो शायद गैर मसीही समझते हैं, और ना ही कोई ऐसी चीज, लेकिन खुदा ने अपने लोगों के लिए लिटरली सोने की सड़क और दरिया, जिसका यहां पर जिक्र है, रखा है। कीमती तरीन पत्थरों पर बुनियादें, उसके नूर से खुद ये शहर रोशन होगा। आफताबो महताब के होने के बावजूद वहां पर रात नहीं होगी, क्योंकि बर्रे के नूर से वो शहर रोशन होगा। दरिया से मुताल्लिक एक और बात जो यहां लिखी है वो ये है कि ये खुदा के तख्त से निकलता है, और खुदा के तख्त से और बर्रा के तख्त से एक ही बात है। वहां से जो दरिया निकलता है, आप खुद सोचें कि वो कितना ज्यादा पाक दरिया होगा, और उसका पानी कितना ज्यादा पाक होगा। हमारी सोचो बचार से ये बहुत बाला तर बातें हैं, नहीं समझ पाएंगे इस बात को जब तक कि हम जलाली बदन में होकर उस बहते हुए दरिया को देख ना ले। और ये शहर के अंदर ही होगा, ये बहकर कहीं
और नहीं जाएगा, हमें बहता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो उस नए शहर यरूशलेम के अंदर ही होगा। रोड, सड़क जा रही है, उसके बीच से बहता होगा, जैसा हम यहां पर देखते हैं। ताहम जैसे भी बहता होगा। इस बात को हम जरूर मलहूज़े खातर रखें। एक और बात, जब यहां पर लिखा है मुझे बल्लौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का दरिया, इससे पता चलता है कि बल्लौर की मानिंद चमकता हुआ दर हकीकत ये एक ऐसे शफाफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरफ इशारा है, जो मुकम्मल तौर पर बगैर किसी दाग और धब्बे के होगा। ऐसा साफ और शफाफ पानी बलौर से तशबीह दी गई है, चमकता हुआ, कि कभी आपने कीमती से कीमती भी मिनरल वाटर वैसा नहीं देखा होगा। मुझे दुनिया के कई ममालिक में जाने का इत्तफाक भी हुआ, मुख्तलिफ रंगों के पानी भी देखे, एक एक दरिया से दो दो रंग के भी पानी बहते हुए देखे। समंदर, यहां कोई और कलर, वहां कोई और, वहां कोई और कलर। एक ही मुल्क के साइल की बात करता हूं, जैसे माल्टा, जिसका हम मलीते के तौर पर नाम देखते हैं। और बास जगहों पर तो इतना क्लियर पानी, इतना क्लियर कि वो नीला पानी, हल्की सी लहरें उठती हुई नजर आती हैं, और इवन नीचे मछलियां भी नजर आती है। इतना खूबसूरत खुदा ने अपनी नेचर को बनाया है। अगर हम उसकी केयर नहीं करते, हमसे मुराद हम जो कराची वाले हैं, तो फिर यह हमारी बात है। लेकिन खुदा ने हमारे लिए हर एक चीज परफेक्ट और कामल बनाई, आलूदा किया है, तो मैंने और आपने किया है। आबे हयात जिंदगी की तरफ भी इशारा करता है। और नए यरूशलेम में जितने भी मुकद्दसीन होंगे, सारे मुकद्दसीन ही होंगे, कुद्दूस खुदा के हुजूर, वो हमेशा के लिए जीते रहेंगे, अब्दुल आबाद जिंदा रहेंगे। और इस आयत पर गौर करते हुए मुझे याद आ रहा था कि ये तो दुनिया के इख्तिताम, सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, इसीलिए तो एक नए शहर की बात हो रही है। बाकी सब कुछ नाबूद हो जाएगा। इख्तिताम पर हमें इस नए शहर यरूशलेम और इसमें से बहते हुए दरिया की बात मिलती है। और जब हम दुनिया के आगाज की तरफ भी जाते हैं, बाइबल मुकद्दस के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो हम देखते हैं कि अदन में भी किस तरह से नदियां बहती थी। हम इस बात को अच्छी तरह जाने। वहां तो तमाम तरह की आसाइश मौजूद थी इंसान को खुदा के साथ रफाकत रखने में, और खुदा की इस कुदरत और फितरत और नेचर को देखकर महजूज होने की। ता वक्ते के गुनाह नहीं आ गया, और केवल इस गुनाह के इंसान किस कदर वहां पर
इन नेमतों से महजूज होता हुआ होगा, लेकिन फिर हर जमाने में इंसान आगे और आगे और आगे बढ़ने के ख्वाब देखता है, और कोई मुखालिफ पावर आई और उसने इस इंसान के जहन में फतूर डाला, और उस फितने के सबब से हम उस मुकाम से, जो असल में गोया नए यरूशलेम की ही एक नजीर थी, हमेशा के लिए महरूम हो गए। लेकिन खुदा ने फिर से हमारी वापसी का भी इंतजाम किया अदन में जाने के लिए। और यह अदन वो इराक वाला नहीं, ये आसमानी वतन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस धरती पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं, और हम उस अपने वतन में जाने के लिए स्टॉप पर इंतजार करते हैं, ताकि हम कुर्बे इलाही में रहें और उसकी उन तमाम बरकत से महजूज हों जो वो अपने लोगों को देना चाहता है। हम इस पहली आयत में इस पहले मंजर को देखते हैं जो मुकद्दस यूहन्ना मुझे और आपको बता रहे हैं कि वहां क्या मैंने देखा है। और फिर इस दरख्त के, माफ कीजिए, इस दरिया के इर्द गिर्द कुछ और भी होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। आप मौका निकालें, और निकालना चाहिए भी, ताकि इस 22 बाब को अच्छी तरह इस दौरान हफ्ता स्टडी करें, तिलावत करें, पढ़ें, धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, ताकि हम जान सकें कि इसमें क्या है, हमारे समझने में और ज्यादा मदद होगी। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप में से कोई भी है, कोई ही दीन, कोई ही मजहब, कोई ही धर्म क्यों नहीं, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। इस दुनिया की रंगीनियों से अपना मुंह फेर कर खुदावंद खुदा से अपना कनेक्शन जोड़ ले। खुदा के और इंसान के बीच में एक ही दरमियानी है, और वो मसीह इब्ने मरियम, कलिमतुल्लाह और रूह अल्लाह ही है। इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। इवन जिनको लोग कुतबे समाविया समझते हैं, ढूंढ कर देख लीजिए, जिसने यह कहा हो कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह है। झूठ और बुतलान के लिए मरते और खपते रहे, रियाजत करते रहे, हाथ कुछ नहीं आएगा। तारीकी से निकल आइए और रब्बुल इज्जत के हुजूर अपने पापों का इकरार कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, और मसीह के सलीब पर किए गए काम को अपने लिए कबूल कीजिए कि वो मेरी खातिर सलीब पर मेरे इवजी बने, मर गए, दफन हुए, और फिर मुर्दों में से जी उठे, जो आज भी जिंदा है। और फिर खुदावंद के हुजूर ये दुआ करे, खुदावंद मैं अपना जीवन आपकी नजर करता हूं, मेरे दिल के तख्त पर आप राज करें। फिजिकली जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, केवल इसके कि इस जिंदगी की किताब बंद हो, अपने आप को माबूदे हकीकी के हाथों में दे दें, गुनाहों की मुआफी
اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے قادر مطلق خدا باپ کے ساتھ۔ خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ آپ جہاں کہیں ہیں، اگر اندھیرے میں ہیں تو نور اور اجالے میں آئیے۔ نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، تو آئیے اس کے پاس جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ سے تم آ سکتے ہو۔ اور اگر آپ میں سے کوئی ہے تو میرے ساتھ مل کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ چاہے تو بعد میں اکیلے میں خدا کے روح کو موقع دیں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو، اور آپ اپنے آپ کو فلی خداوند خدا کے ہاتھوں میں دیں، تاکہ زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ میں تاریکی میں تھا، اور 1984 میں بہت برس بیت گئے، خداوند مجھے تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائے۔ آپ کے لیے بھی موقع ہے۔ آج کا دن 2022 be a year of transformation in your life۔ خدا آپ کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا رہا ہے۔ اور آرام پا۔ میں آپ کے لیے تھوڑی سی مختصر سی چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے قادر مطلق، شکر گزار ہیں آپ کی ازلی اور ابدی محبت کے لیے کہ ہم کون اور ہماری حقیقت کیا۔ ہم نے تو آپ کی شان میں بغاوت کی، نافرمانی کی، لیکن شکر ہو کہ آپ واپس اپنے ساتھ ہمیں ملانے کے لیے اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گئے۔ ہماری عفضی اور کفارہ ہوئے اس بات کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور خداوند آج ان تمام کے لیے بھی جو اس کلام کو سنتے ہیں لیکن ابھی تک اپنا دل آپ کو نہیں دیا، دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں ان کی زندگی میں آپ کام کیجئے۔ پاک روح کی قدرت سے ان کو فضل دیجئے کہ وہ اپنی زندگی کا ریموٹ آپ کے ہاتھوں میں دے سکیں اور آپ کے لیے جینے والے ہوں۔ اور خداوند ممکن فرمائیے جو آج اپنا اقرار کر کے توبہ کر کے آپ پر ایمان لاتے ہیں، انہیں قبول کیجئے، گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا انہیں یقین دلائیے۔ ان تمام کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں جو بیمار، دکھی اور لاچار ہیں، پریشان حال ہیں۔ خداوند آپ تمام سوالوں کے جواب اور مسائل کا حل ہے، شافی اعظم ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے لوگوں پر بڑھائیے، زندگی، شفا اور عمر کی درازی بخشیے، تاکہ آپ کا نام آپ کے لوگوں کے برکت پانے، شفا پانے، معافی پانے کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بے شمار برکات سے ہم کنار فرمائے۔ پھر ملیں گے بشرطے کہ خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہو تو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔